Morning students. Today we are going to start the new topic from geometry, that is coordinate geometry of 10th standard. So in the last lecture we have completed the geometry part, similarity, and from geometry we have completed two topics, one similarity, second Pythagoras theorem, and now this is the third chapter that today I am starting, which is coordinate geometry. So this chapter is already you have studied in 9th standard, and this is the next step of this chapter. So in this coordinate geometry we have to just remember the formulas, okay, and using the formulas we have to solve the examples. So this chapter is very simple and easy. You all can easily simplify, you all can easily understand the concept, the example, and it is very easy chapter. So now we'll start with the topic. So coordinate geometry means what? So first coordinate. Here you can see co likha hai, then ordinate. Coordinate geometry. So co means two, ordinate means points. When two points come together, then it is called coordinates. And geometry means we have to use the geometry concept on that points. Okay, so basically coordinate is nothing but the points which has two ordinates, one x ordinate and second y ordinate. So x को abscissa बोलते हैं, y को ordinate बोलते हैं. So x comma y. So we have given 2 points a and b. So it is of two dimensional geometry. दो axis है, x axis and y axis. तो suppose a पॉइंट है, इसके अंदर पॉइंट है x1 y1. x1 y1 इज नथिंग बट एनी नंबर 2, 3, 5, 4, -7, 8. नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, एनी नंबर. ठीक है. सो a x1 y1 एंड b x2 y2. दिस टू पॉइंट्स आर गिवन. बी टू पॉइंट्स इन अ स्पेस. कोई भी एक स्पेस में दो पॉइंट्स गिवन है. देन द फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो सिंपली टू पॉइंट्स विल बी गिवन, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. एक ए पॉइंट दिया है, उसको कोऑर्डिनेट दिया है कि कौन से स्पेस में है वो. सेकेंड बी कोऑर्डिनेट इज गिवन, देयर पॉइंट इज गिवन. ओके, यूजिंग द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी. सिमिलरली सपोज I can show you, suppose this is A and suppose this is B. तो A का जो वैल्यू है suppose 2, 3 है और B का वैल्यू है 4, 1 है. So अगर मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करूँगा so you can see there will be a forming a line. Yes or no? There will be a forming a distance. You can see here. ठीक है. So this distance is known to be a distance of AB. Understood? One point A is given, second point B is given. Their coordinate will be given in the question. Using the coordinate we have to calculate the distance of AB. So one thing is you have to remember that first coordinate is always denoted by x1 y1. कोई भी पॉइंट रहने दो उसको डिनोट करेंगे x1 y1 से. Yes or no? Second coordinate will be denoted by x2 y2. ये दो कोऑर्डिनेट हमको सपोज करना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी डिनोटेड बाय x1 y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय x2 y2, एंड द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, अंडर रूट स्क्वायर रूट ब्रैकेट x2 minus x1, मतलब सेकेंड x कोऑर्डिनेट से फर्स्ट x कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना है. सेकेंड कोऑर्डिनेट का x पार्ट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का x पार्ट, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. So this is very simple formula. So here I have written the question related to this formula. So you can see find the distance between each of the following pair of points. Okay. So one point is given a 2, 3, second b 4, 1. So if you compare these two coordinate with x1 y1 and x2 y2, जैसे ये a 2, 3 है. So no, this is very important. So here a x1 y1. So a 2, 3 will be compared with a x1 y1. And b 4, 1 will be compared with b x2, y2. It is not necessary that a and b is always coming. Instead of a and b, p and q will become. Okay, lm आ सकता, rs आ सकता, कोई भी पॉइंट आ सकता. बट इतना याद रखना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी डिनोटेड बाय x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट विल बी डिनोटेड बाय x2 y2. यस और नो? तो a 2, 3 है तो a का वैल्यू हो जाएगा x1, b 3 का वैल्यू 2 का वैल्यू होगा x1, 3 का वैल्यू रहेगा y1. मतलब x1 का वैल्यू है 2
y1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है 1. Yes or no? So we have to compare the coordinates, then we have to simplify. Okay, now we'll come to the example. ठीक है, so this is the formula and this is the question. Now we'll start with the example. Now here the point is given a2, 3, b4, 1. This is the first question. तब ये दो पॉइंट को लेके हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड दिस टू पॉइंट्स आर गिवन. तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट a2, 3 जो पॉइंट है इसको डिफाइन करेंगे x1, y1 से. यस और नो. सेकेंड b4, 1 है, इसको रिलेट करेंगे x2, y2 से. ओके, जैसा मैंने रिलेट कर दिया, ओके, तो इतना मालूम पड़ गया कि पहला पॉइंट x1, y1 है, सेकेंड पॉइंट इज x2, y2. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला. ओके, अब फॉर्मूला क्या था हमारा, वो फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने ऑलरेडी तुमको लिखा के दिखाया था. ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अभी ये फॉर्मूले के अंदर हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. अब कैसा करेंगे देखो, इज इक्वल टू अंडर रूट सेम. ओके, ये फॉर्मूला करके मैंने हाईलाइट किया. अब हियर x2 माइनस x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 हियर, तो यू कैन सी 4. x2 किसके इक्वल है, 4 के, तो ब्रैकेट 4 माइनस x1 किसके इक्वल है, 2, मतलब x2 के प्लेस पे 4 है और x1 की प्लेस पे क्या है, 2 है. सो 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अंडरस्टूड कैसे किया हमने. हियर इट इज x2, y2. x2 will be 4, so we have written 4, minus x1 will be 2, so we have written 2. 4 minus 2 bracket square plus bracket, what is the value of y2 here, y2 is 1 minus what is the value of y1 is 3, minus 3 bracket square. Now we'll subtract this. 4 minus 2 is 2 and square will be same, जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट का स्क्वायर सेम रहेगा. ओके, प्लस 1 minus 3 is minus 2, bracket square will be same. Okay, 2 square is 4, minus 2 square is 4, 4 plus 4 is root 8. So this is the answer. Distance of AB equal to root 8 unit. This is the answer. Distance of AB equal to root 8 unit. Okay, समझा? It is very simple. First we have to compare the points with x1, y1, x2, y2. After that, after comparing we will write the formula. Okay, after writing the formula, substitute their values. x2 is 4, x1 is 2, so 4 minus 2 bracket square plus y2 minus y1, so y2 is 1, y1 is 3, 1 minus 3 bracket square. 4 minus 2 is 2 square, 1 minus 3 is minus 2 square. 2 का स्क्वायर आता 4 और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है. So 2 square is 4, negative will become positive and 4 plus 4 is root 8. So this complete the first example. Now we'll come to the second example. Now the second example is here, p minus 5, 7, q minus 1, 3. This is the second example. These 2 points are given and using these 2 points we have to calculate the distance between p and q. Okay, अभी इधर a की जगह पे p है, b की जगह पे q है, बट हमको वैसा ही डिफाइन करना पड़ेगा x1, y1 से. So first point is minus 5, 7, so we'll denoted by x1, y1. Second is what, q is given minus 1, 3, that will be denoted by x2, y2. Yes or no? After defining this x1, y1, x2, y2, we'll write the formula. तो फॉर्मूला को हमेशा मैं हाईलाइट करूंगा तुमको समझने के लिए. दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2. नाउ विल राइट द फॉर्मूला. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू, ओके, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अंडर रूट ऑफ. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज यहाँ माइनस में भी टर्म्स दिया है तो रूल चेंज हो जाएगा. जो गोल्डन रूल बताया था मैंने तुमको, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस एंड प्लस प्लस इज प्लस. तो यहाँ लिखा के देता हूँ मैं रूल तुमको समझने के लिए. अगर वन टर्म इज नेगेटिव एंड सेकंड टर्म इज पॉजिटिव तो माइनस प्लस विल बी माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड प्लस प्लस विल बी प्लस. ये गोल्डन रूल याद रखना है तुमको. ठीक है, if one term is negative, second term is positive, then we'll have to subtract.
If first is positive, second is negative, then again we have to subtract. If both the term containing negative sign, then we have to add and keep minus sign. Add करके minus sign रखना है, इसलिए bracket में minus लिख रहा हूँ. मतलब we have to add that term and we have to put minus sign over that number. Okay? And if both the number carry positive sign, then we have to add and write the positive sign only. Okay? So here we'll start with the example. So x2 is -1. So we'll write here -1. Minus will be same. ये formula का minus will be same. x1 कितना है? -5 है. इधर ध्यान दो. ठीक है? x2 is -1 is already there. Minus will be same. What is the value of x1 here? -5. देखो इधर समझ में आ रहा है ना x2 x1 कैसा निकाल रहा हूँ मैं. ब्रैकेट से कंपेयर करें. -1, 3 is x2, y2. So x2 will be -1. -5, 7. So x1 will be -5. So x2 minus x1 -1 minus ब्रैकेट लेके -5 एंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. अब डबल ब्रैकेट क्यों आया? तो ये समझना है तुमको कि डबल माइनस साइन है. x2 का वैल्यू है -1 और ये फर्स्ट माइनस साइन है. दिस इज द माइनस फ्रॉम फॉर्मूला जो मिडल साइन है. ओके, बट x1 इज अगेन -5 तो माइनस डबल आ गया तो वी हैव टू पुट ब्रैकेट. यस और नो? वी हैव टू पुट ब्रैकेट. देन स्क्वायर प्लस अगेन ब्रैकेट. y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 है तो माइनस में नहीं है तो डायरेक्टली 7 लिख दिया. -7 इज पॉजिटिव. ओके, माइनस नहीं है सो 3 - 7. आफ्टर दैट अंडर रूट ऑफ -1 माइनस इज +5. अभी मैंने बताया नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव. बट एडिशन में रहेगा तो माइनस करने का. ये मल्टीप्लीकेशन में साइन. सो माइनस विल बी प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 7 इज -4 ब्रैकेट स्क्वायर. माइनस इससे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस. 7 का ग्रेटर साइन है. ठीक है. आफ्टर दैट माइनस प्लस इज माइनस. सो 1 माइनस प्लस इज माइनस. 5 - 1 इज 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 ब्रैकेट स्क्वायर. यस और नो? -4 स्क्वायर इज अगेन 16 एंड -4 स्क्वायर इज 16. 16 + 16 is √32. So answer of distance of PQ is √32 unit. √32 unit. This is the answer. √32 unit. Okay, तो डिस्टेंस ऑफ PQ मिल गया √32 यूनिट. इधर ये भी PQ आएगा, इधर AB नहीं आएगा. जो कोऑर्डिनेट दिया वही लिखना है. तो डिस्टेंस ऑफ PQ का फॉर्मूला लिखे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड सिंप्लीफाई करें. तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. जब भी नेगेटिव आएगा तो यू हैव टू बी नो द रूल्स. माइनस प्लस when you subtract both terms, one is negative and other is positive, so you have to subtract first the number, then we have to manage the sign. Okay, sign of greater number. जैसा इधर y2 is 3 है, y1 is 7, 3 - 7 is 4, but we have to put minus sign again because the minus sign containing with greater number. 3 और 7 में greater number क्या? 7 है. so greater number का साइन ली. और -4 का स्क्वायर 16 और here -1 minus x1 is again -5, then minus become -1 + 5 is 4 and 4 square is 16 and minus का भी स्क्वायर प्लस होता. 4 square is 16. 16 + 16 is 32. So √32 is the answer. Now we'll come to the example number 2. Question number 1 is completed. In the question number 1 we have to just calculate the distance between 2 points. 2 points will be given. We have to calculate the distance. Now we'll go to the another example. Now this is the question number 2 from practice set 5.1. This is the 3 points are given. A 1, -3, B 2, 5, C -4, 7. 3 points are given and we have to determine the above points are collinear or not. अभी collinear मतलब क्या? Collinear means if 3 points are in a same line. जैसे ये लाइन है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट और यहाँ भी एक पॉइंट है. इफ दिस 3 points are lying in a same line, then these 3 points are said to be a collinear points. Yes or no? If these 3 points are randomly, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक बाजू में है, if it is randomly, then it is called non-collinear points. So this is the first concept you have to understand. Collinear points is nothing but whenever 3 points are lying in a same line like A, B and C, and if you draw the line, then you will get a simple line, straight line. Then these 3 points are known to be a collinear points. Yes or no? And when these 3 points are in random, A is here, B is here and C is here, तो ये 3 points मिला के कोई line form हो सकती क्या? नहीं.
लाइन फॉर्म ही नहीं हो सकती एक सिंगल लाइन, इट विल बी फॉर्मिंग अ ट्राइंगल अगर ज्वाइंट भी किया तो दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये सर नो। तो अभी हमें डायग्राम वगैरह नहीं ड्रॉ करना है, जस्ट थेरोटिकली यूजिंग फॉर्मूला वी हैव टू चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अभी 3 पॉइंट है ए बी सी, तो क्या करना है देखो, इट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करना है तो तुमको आ गया, मैंने बता दिया हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग द फॉर्मूला। सो हियर सपोज 3 पॉइंट्स आर गिवन ए बी एंड सी। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बी सी, एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब ये तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करे बाद ए बी सी 3 पॉइंट है ना, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, देन डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड देन डिस्टेंस ऑफ ए सी। एज यू गॉट 3 डिस्टेंस, तो तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है उसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। सपोज ए बी है 3 फॉर एग्जाम्पल, क्या अभी तक सॉल्व नहीं किया, आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, सपोज distance of AB is 3 unit, distance of BC is 2 unit and distance of AC is 5 unit for example। कैलकुलेट करे बाद distance of AC 5 मिला, distance of AB 3 मिला, distance of BC 2 मिला। तो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है उसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, और उसके बाद रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा उनका अगर एडिशन थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आया देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हो गया। हाइपोटेन्यूस का एडिशन रिमेनिंग साइड्स के इक्वल रहता एडिशन के, तो सेम वैसे पार्ट में डिस्टेंस ऑफ ए सी इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देने का, जो भी ग्रेटेस्ट आएगा, हमेशा ए सी नहीं आता, ए बी भी आ सकता, बी सी भी आ सकता, एनी पॉइंट्स विल कम ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी 5 आया। ओके, डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है जो ग्रेटेस्ट आया उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका एडिशन करके चेक करना है कि उनका सम ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आता है या नहीं। अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आया तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा, अगर नहीं आया तो इट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। वेरी सिंपल, समझा क्या करना है, पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी कैलकुलेट करना है, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी कैलकुलेट करना है। 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करे बाद वी हैव टू चेक विच डिस्टेंस हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो भी डिस्टेंस का ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगा कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचे उनका एडिशन करके चेक करने का कि उसका एडिशन वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आता या नहीं। इफ इट इज इक्वल टू दैट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस then we can say that the points are collinear. If it is not equal then we can say that the points are non-collinear. Understood? The same here, AB हम पहले कैलकुलेट करें, फिर BC कैलकुलेट करें, फिर AC कैलकुलेट करें। तो AC का वैल्यू सपोज 5 है, तो इन दोनों का एडिशन करके देखें तो 5 ही आ रहा, तो मतलब ये दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब स्टार्ट कैसा करेंगे देखो। नाउ सबसे पहले हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज करेंगे। कैसा देखो, फर्स्ट विल राइट लेट A 1, -3 will be denoted by x1, y1. B 2, 5 will be denoted by x2, y2. C -4, 7 will be denoted by x3, y3. सबसे पहले हम लोग तीनों डिस्टेंस को रिलेट करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x1, y1, सेकेंड इज x2, y2, थर्ड इज x3, y3। क्यों डिनोट किए, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है हमको। ये सुनो, अब तीनों के डिस्टेंस को रिलेट करे बाद सबसे पहले हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है। सो विल राइट द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला आता है √ब्रैकेट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1 होल स्क्वायर। तो क्या करें, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करें, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी है ना, तो ए बी में देखो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते, बी के पॉइंट माइनस ए के पॉइंट, x2 - x1 प्लस y2 - y1। सपोज अगर हमको BC का बनाना है, फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा। अभी इधर बनेगा B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, देन द फॉर्मूला विल बिकम x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। यस और नो? मतलब जब हम BC पे जाएंगे तो B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। दिस विल बी सेपरेट लाइक दिस, x3 - x2, मतलब x2 की जगह पे x3 आएगा और x1 की जगह पे x2 आएगा, y2 की जगह पे y3 आएगा और y1 की जगह पे y2 आएगा। ठीक है, देन द फॉर्मूला विल बिकम x3 - x2 होल स्क्वायर y3 - y2 होल स्क्वायर। किसके लिए? BC के लिए। एंड नाउ फॉर AC, अगर मुझे AC का डिस्टेंस बनाना है तो क्या आएगा? AC का डिस्टेंस के लिए A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, देन द फॉर्मूला विल बिकम x3 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी के लिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करें तो BC के लिए x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 एंड AC के लिए x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे ए बी। तब कैसा करेंगे, ये लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 इज हियर 2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इज हियर 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस y1 is bracket minus 3 bracket whole square. After that 2 minus 1 is 1 का square plus 5 minus of minus plus 3 bracket square, then 1 square is 1 and 5 plus 3 is 8 square. Yes or no? 5 plus 3 is 8 square, 1 is same, 8 square is 64. Okay, 1 plus 64 is root 65. Therefore distance of AB मिल गया हमको। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना मिल गया, देन वी हैव गॉट डिस्टेंस ऑफ ए बी इज रूट 65. ओके, आर यू गेटिंग दिस? रूट 65. सो विल राइट हियर देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज रूट 65. ओके, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज रूट 65. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी सी एंड ए सी. ओके, so we'll remember this root AB, distance of AB is 65, then we have to calculate distance of BC and then distance of AC. Now we'll see the next. Now here as we have got distance of AB is root 65, now we have to go for distance of BC. So he will write the formula for distance of BC here. Therefore distance of BC formula कैसा बनेगा, कहते रहे ओके, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज अंडर रूट ऑफ ओके बी एंड सी, तो बी सी का फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर. ओके, फॉर्मूला पहले मैंने लिख दिया x3 माइनस x2 कैसा, देखो इधर बी सी दिखाई दे रहा था हमको पॉइंट, इधर देखो बी सी पॉइंट. ओके, बी सी में बी के कोऑर्डिनेट में x3, बी के कोऑर्डिनेट में x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट में x3 y3 है, देन x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर. आफ्टर दैट अब करेंगे क्या, जरा ध्यान दो, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x3 का वैल्यू है -4 ब्रैकेट -4 माइनस x2 का वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू है 7 माइनस y1 का वैल्यू है 5. ठीक है, इधर आएंगे अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, so -4 minus 2 is -6 square plus 7 minus 5 is 2 bracket square, -6 square is 36, 2 square is 4, 36 plus 4 is 40, so this will be root 40. yes or no? अब root 40 को हम लोग लिखेंगे कैसा, 4 टेंजा लिख सकते हैं. ओके, या फिर हम लोग यस 4 टेंजा लिख सकते हैं, और 8 5 40, तो 8 में ऐसा फैक्टर लेना है इसका 40 का जिसके अंदर वन नंबर विल बी स्क्वायर एंड अनदर नंबर विल बी नॉन स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस अंडर रूट ऑफ 4 10 40. ओके, तो 4 विल बी द स्क्वायर रूट 2 रूट 10. द डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 2 रूट 10. दिस इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी वी हैव गॉट. Okay, first distance of AB we have got root 65, distance of BC we have got 2 root 10. okay, अभी हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ AC. अब देखो इधर डिस्टेंस ऑफ AC, अब मैंने यह पॉइंट लिख के रखा क्योंकि वो बहुत ही दूर है, दिखाई नहीं देगा करके. तो A विल बी 1, -3 x1 y1 and C is -4, 7 x3 y3. so these 2 points are here. okay, A and C. अब हमको इसके अंदर क्या करना है, देखो अभी इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ AC. अब कैसा कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान दो. अभी कैलकुलेट करने के लिए A है x1 y1, C इज x3 y3, सो विल राइट हियर देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AC. फॉर्मूला कैसा बनेगा सबसे पहले वो देखो, फॉर्मूला विल बी लाइक दिस x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो विल राइट हियर ब्रैकेट x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर. which is equal to under root of, what is the value of x3 here, x3 is what, -4, and what is the value of x1 here, 1. so -4 minus of 1 bracket square plus
what is the value of y3 is 7 minus and what is the value of y1 is minus of -3. अभी डबल माइनस है इधर करके ब्रैकेट लिया, समझा कैसा? y3 is 7, middle sign is fixed minus, then y1 is again -3, so minus minus will become plus, इसलिए इधर मैंने ब्रैकेट लगाया. ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इधर y1 भी माइनस में नेगेटिव में है. आफ्टर दैट अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस -4 -1 इज -5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 7 प्लस 3 इज 10 स्क्वायर. Yes or no? -4, 7, 1, 3. After that, what you will write? 25 plus 100, 10 का square. So what you will get? Here you will get 125. 125 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है. तो 125 कैसे लिखेंगे? 25 5 125 होता. ओके, 25 5 125 होता. Yes or no? और कौन से इसमें आता? 25 5 125 होता. तो इधर लिखेंगे विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 5. 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5√5. ये मिल गया डिस्टेंस ऑफ ए सी. ओके, अब मैं तीनों डिस्टेंस के वैल्यू लिखता. डिस्टेंस ऑफ ए सी का वैल्यू मिल गया 5√5. कितना मिल गया? 5√5. एक्चुअली 25 प्लस 100 125 हो गया था. 125 के फैक्टर्स लिए, तो फैक्टर कैसे लिए? 25 इंटू 5 इज 125. 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया एंड √5 विल बी सेम. अब जो जो वैल्यूज़ मिले, अब इसको हम एक साथ लिखेंगे. ए बी कितना मिला, बी सी कितना मिला, ए सी कितना मिला, फिर कंपेयर करेंगे. तो नाउ विल सी. अब तुम यहाँ देख सकते हैं मैंने तीनों डिस्टेंस लिखा हूँ. डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको जो मिला सॉल्व करे बाद √65. डिस्टेंस ऑफ बी सी मिला सॉल्विंग करे बाद 2√10. डिस्टेंस ऑफ ए सी मिला सॉल्विंग करे बाद 5√5. आफ्टर वी आर गेटिंग दिस 3 डिस्टेंस, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर विच डिस्टेंस इज ग्रेटर. अब ग्रेटेस्ट चेक करने के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. तो कंपेयर कैसा करना है? देखो, दिस इज √65. 65 के नीचे जाएंगे तो 64 होता. 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8. तो मतलब ये 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, मतलब 8 से ग्रेटर है. कितना ग्रेटर है? 8 पॉइंट समथिंग. यस और नो? तो ये √65 है, मतलब 8 का वैल्यू मिलेगा. यस और नो? दिस इज 2√10. ओके, अभी √10 है, ये तो 2 बाहर निकला है. 10 से स्मॉलर स्क्वायर वैल्यू कौन सा आता? 9. 9 का स्क्वायर रूट कितना था? 3. 3 2 6. ये 6 है, मतलब 8 से स्मॉलर है, और ये भी 8 से स्मॉलर है. तो ग्रेटेस्ट तुम्हारा हो गया √65. यस और नो? 65 तो √65 तो ग्रेटेस्ट हो गया. बट ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू स्मॉलर आ रहा. कैसा बताया मैंने? फिर से देखो, 65 है, √65 का वैल्यू तो पता नहीं हमको. √65 से स्मॉलर में देखने का कौन सा स्क्वायर नंबर तुमको याद है? 65 से स्मॉलर आता 64, जो स्क्वायर है 8 का. ठीक है, तो √64 8 आता, तो मतलब 8 पॉइंट समथिंग में कुछ ना कुछ नियर अबाउट वैल्यू है. दिस इज √10. ओके, √10 से स्मॉलर वैल्यू कौन सा था स्क्वायर में? 9. √9 का स्क्वायर रूट 3 होता. 3 2 6, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 8 से स्मॉलर है. एंड √5 से स्मॉलर 4 होता. 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 5 10, तो ये भी स्मॉलर है. ओके, तो 5 का स्क्वायर रूट 5 से स्मॉलर 4 होता. 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 5 10, तो ए सी ग्रेटर है, सॉरी नॉट ए बी. ए सी इज ग्रेटेस्ट 5√5 एंड दिस इज √65 एंड 2√10. अभी 65 को ऐसा फैक्टर देखने का जिसमें कोई ना कोई नंबर फैक्टराइज हो सकता है. जैसे हमने 40 का फैक्टराइज करे, वैसा √65 का फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चेक करना है. तो 65 कौन सा टेबल में आता? 13 के टेबल में आता. 13 5 65, बट 13 और 5 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते. और उसके बाद 5 में देख करेंगे 5 में होता है क्या? तो 5 के टेबल में नहीं आता है. और कौन से टेबल में आता है? तो फैक्टर नहीं होता. तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने, ओके, तो फिर अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ए सी मिला. ए बी और बी सी को ऐड करके चेक करने का इक्वल आता है कि नहीं. नाउ ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू √65 प्लस 2√10. तो ऐड हो रहा क्या? ये नहीं हो रहा. ठीक है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी. ए सी के इक्वल आ रहा क्या? नहीं आ रहा. तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी. देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. यस और नो? अगर इक्वल आता तो हम लोग लिखते थे कोलिनियर. इक्वल आता था मतलब बोले तो इन दोनों का एडिशन करता था अगर मैं, और इसका वैल्यू ए सी के इक्वल आया तो हम लोग लिखते थे द पॉइंट्स आर
कोलिनियर, बट यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो ये रूट में भी नहीं तो एडिशन कर सकते हैं, बट ये मल्टीपल में नहीं है, ये दोनों रूट का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ये √10 रहता है, ये 2√10 होता, तो विल राइट 3√10. Okay, so this complete the question number 2, that is collinear type example. So we have completed one example of collinear. In the next lecture we will see another example related to this type, that is collinear example. So I hope you understood this example, and this type of example are very important. Okay, so thank you so much watching our video, and try to solve the question for homework. Thank you so much.